Hello students, today I am going to start the next lecture of chapter tissue. In previous lecture we have learned about the simple permanent tissue, and in this lecture we are going to learn the complex or the compound tissue. So let's start the chapter. The topics we are going to discuss in this lecture are, that is compound permanent tissue, and the two type of compound permanent tissue are xylem tissue and phloem tissue. In the last lecture we have learned about the simple permanent tissue. लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था और इस लेक्चर में हम कंपाउंड परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कंपाउंड परमानेंट टिश्यू. So what is the compound or the complex? So it's clear from the name that it's not a simple type of tissue. Compound or complex means when more than two type of tissue are present in the plant, that is known as the complex. उसे complex कहते हैं, जो एक ही तरह से बना हुआ नहीं होता. The complex tissue consists of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. मीन्स कि टिश्यू में सेल जो है वो दो या दो से ज़्यादा तरह के होते हैं, लेकिन उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो तालमेल होता है, वो किसी एक ही काम को करने के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि किसी एक टिश्यू में देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, सो जो दो सेल हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं. दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. उनका काम एक ही होता है, बस उनका कोऑर्डिनेशन, उनका तालमेल इतना अच्छा होता है कि वो अलग तरह के होके भी सेम फंक्शन करते हैं. So that's why it is known as the compound or the complex, because the tissue is complex, means अलग अलग सेल से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स होते हैं. सिंपल नहीं होते, but their function are same, लेकिन उनका काम एक ही होता है. The complex tissue transport water, mineral salts and food material to various part of plant body. जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, and food materials is also transported into the different parts of the plant body. प्लांट के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन का काम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ही करते हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स. कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं. These are the xylem or the wood and phloem or bast. We are already well known about the xylem tissue. हमने पढ़ा है 7-8 में भी पढ़ा है that what is the function of the xylem and phloem. So you are well known that xylem transport the water. आप इतना तो इंट्रोड्यूस हैं कि xylem और phloem का क्या फंक्शन होता है. That xylem transport water into the plant. xylem प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं and phloem transport the food, और phloem फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. Now you are going to learn or you are going to introduce about the different parts कि वो कितने parts से मिलकर के बने होते हैं और कैसे अपना function करते हैं. So let's start from the xylem or the wood. So xylem tissue or the wood. See the 4 type of xylem are, तो xylem के 4 parts होते हैं. These are, xylem is made up of 4 type of cells. See 4 figures are given there. The trachea, vessel, trachea and parenchyma. Trachea is fiber or parenchyma. First is tracheids. See this elongated structure is known as the trachea. Next is the tracheae or vessels. These are the vessels. They have some open endings. इनके ends क्या है? See these ends are pointed. इनके ends tapered और pointed है, लेकिन vessels के end क्या है? Opened है. Next is xylem fiber. This one is xylem fiber. And next is xylem parenchyma. These are the living element. Tracheids or vessels are dead elements. Dead होते हैं. But the xylem parenchyma, it's a xylem parenchyma and it is composed with the living elements. First one is tracheids. Tracheids are elongated cell. These are elongated means लंबे होते हैं. देखिए, these are elongated. With tapering end. Tapering means pointed end. ऐसा नहीं है that end is broader and opened, कि इनके end broader हैं, चौड़े हैं, open हैं. They are the tapering ends and they also conduct water. We are well known that the function of xylem is that it transport the water. So tracheids also transport the water. तो इनका main function तो यही है कि ये water का transportation करते हैं. They conduct water. ये water को conduct करते हैं.
So we are well known that water is absorbed from the root and it always transported in the upward direction. ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिकॉज रूट से नीचे तो कोई पार्ट नहीं होता जहाँ वाटर कंडक्ट होगा या ट्रांसपोर्ट होगा. सिंस ट्रैकेट्स डू नॉट हैव ओपन एंड लाइक द वेसल. अभी हमने देखा था कि वेसल के जो एंड है वो ओपन थे ऐसे, लेकिन ट्रैकेट्स के जो एंड है वो ओपन नहीं है. दीज आर द पॉइंटेड. सो द वाटर हैज टू पास फ्रॉम सेल टू सेल विया द पिट्स. तो वाटर का ट्रांसपोर्ट जो इसमें पिट्स है, इसी से एक सेल से दूसरे सेल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. सो इट्स क्लियर दैट दीज आर द इलोंगेटेड सेल. दे ट्रांसपोर्ट द वाटर विद देयर टेपरिंग एंड विद द हेल्प ऑफ द पिट्स, क्योंकि इनके पास कोई ओपन एंड नहीं होते. वेसल्स और ट्रैकी, वेरी लॉन्ग ट्यूब like structure formed by a row of cell placed end to end. देखिए ये वेसल्स या ट्रैकेट्स में एंड टू एंड पे पाए जाते हैं. द ट्रांसफर्स वॉल बिटवीन द वेसल्स आर completely dissolved to form continuous channels और द वाटर पाइप्स. ये जो रोज बने हैं ये कॉन्टिन्यूसली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. नेक्स्ट इज function. What are the function? That they transport the water. The trackates and vessels help in long distance conduction of water. Why? Because they are elongated. They have the rows of the transverse cells. Long होते हैं, elongated होते हैं, cells के rows बने होते हैं. तो ये water को plant के दूर दूर तक के part में और minerals को upward direction में transport करने का काम करते हैं. Upward बताया आपको कि ऊपर की ओर. Why? Because root ही water का एब्जॉर्प्शन करता है और रूट से नीचे कोई भी प्लांट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ऊपर की ओर इन द अपवर्ड डायरेक्शन होता है. अपवर्ड फ्रॉम द रूट सिस्टम टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. मैकेनिकल मीन्स फंक्शन को करने के लिए सपोर्ट भी देते हैं. नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर. सीड्स जाइलम फाइबर. दीज आर डेड एंड लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल which are mainly supportive in function. These are dead. ये dead होते हैं. Sclerenchymatous means we have learned in the previous section. Sclerenchymatous cell कैसे होते हैं? Dead होते हैं. और lignified means lignin जो कि sticky substance होता है, उसी से ये सारे जुड़े हुए होते हैं. Which are mainly supportive in function. जो क्या करते हैं? जो कि जाइलम को सपोर्ट देते हैं जिससे ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करें. वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प नहीं करते हैं. ओनली दे गिव सपोर्ट टू द जाइलम as a xylem fiber to transport the water. Xylem जो होते हैं, xylem टिश्यूज को ये सपोर्ट करते हैं जिससे कि ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर सके. एंड नेक्स्ट इज xylem parenchyma. It is formed of living parenchymatous cell. ये living parenchymatous cell से मिलकर के बने होते हैं, which help in storage of food and lateral conduction of water and minerals. जो कि फूड के स्टोरेज में और लेटरल कंडक्शन मीन्स साइड वाइज क्या करते हैं? वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं. लेटरली मीन्स इधर साइड्स में. ठीक है. सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ फाइबर्स. जाइलम फाइबर वी हैव लर्न अबाउट दैट. इट्स क्लियर नाउ. सो लेट्स कम ऑन द फ्लोएम. वाटर ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया. Now food is also transported into the plants. Food भी ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसे फ्लोएम कहते हैं. It is made up of 4 type of cell. ये भी 4 सेल से मिलकर बने होते हैं. जाइलम भी 4 थे. That is trachete, xylem vessel, xylem fibers and xylem parenchyma. Next is phloem. And phloem is also 4 type. That is sieve tubes. Next is companion cell or living element. Next is phloem parenchyma and next is phloem fibers. And these are also prepared from the dead elements. जैसे हमने xylem में पढ़ा, xylem fibers are sclerenchymatous and they give support to the xylem to transport the water. Similarly, the xylem fibers are also the dead elements and they give support to the phloem to transport the food into the cell. Next is, first of the phloem is sieve tubes. Sieve tubes are slender, tube-like structure composed of elongated thin wall cell placed end to end. See, the sieve tubes are slender. ये देखिए ये sieve tube है, कैसे slender है, पतले हैं.
ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है एंड कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड और लंबे पतले थिन वॉल जो कि पतली सी वॉल से ढके हैं और एक के बाद एक पाए जाते हैं। ठीक है, एक के बाद एक पाए गए हैं, स्लेंडर है, पतले हैं और इलोंगेटेड हैं। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड बाय न्यूमरस पोर्स, जो उनके एंड वॉल्स होते हैं वो परफोरेटेड मीन्स उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। Their end are perforated by numerous pores and are called sieve plate. Perforated है, pores हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, sieve कहते हैं। जैसे चलनी होती है, sieve होती है ना, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ऐसे ही इनके वॉल में, थिन पतली सी वॉल में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें sieve plates कहते हैं। वॉल ऑफ sieve ट्यूब्स आर परफोरेटेड, जो वॉल है वो क्या है, परफोरेटेड है, छोटे छोटे sieve से कम भरी हुई है। सो दैट्स वाई द नेम इज द sieve ट्यूब, और ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट इज कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स क्या होता है, साथ। सो दीज आर एसोसिएटेड विद द sieve ट्यूब, क्योंकि ये sieve ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। सो दैट्स वाई देयर नेम इज कंपेनियन सेल, इसीलिए इन्हें कंपेनियन सेल कहते हैं। These are smaller cell having dense cytoplasm and prominent nucleus. ये छोटे से होते हैं, स्मॉलर होते हैं और साइटोप्लाज्म जो कि आप जानते हैं कि एक स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, तो ये साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होते हैं, बहुत घने पाए जाते हैं और एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। द कंपेनियन सेल्स हेल्प द sieve ट्यूब इन द कंडक्शन ऑफ वाटर मटेरियल्स। द कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं, कंपेनियन सेल्स कंडक्शन करते हैं फूड मटेरियल्स का sieve ट्यूब से आगे की ओर। Sieve cells and companion cells are so called sister cell because they originate from single mother cell. Sieve tube और companion दोनों को क्या कहते हैं, सिस्टर सेल कहते हैं, क्योंकि दोनों एक ही सेल से ओरिजिनेट होते हैं, एक ही तरह के सिंगल सेल से ओरिजिनेट होते हैं और एक ही से ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए इसे जिससे ओरिजिनेट होते हैं उन्हें सिंगल मदर सेल कहते हैं और दोनों एक लगभग एक ही तरह के काम करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द सिस्टर सेल। अभी बताया कि sieve ट्यूब परफोरेटेड होते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं और उनसे ये जुड़े हुए होते हैं कंपेनियन, और कंपेनियन सेल भी नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये sieve से जुड़े होते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनके साथ ही काम करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज द कंपेनियन cell, and they both the sieve cells and the companion cells helps to transport the food. ये दोनों ही फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। अभी हमने जाइलम फाइबर्स पढ़ा था दैट दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेड सेल, सो फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेड सेल। जब भी कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो याद करना इजी हो जाएगा। सो जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा को फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर से कंपेयर कर सकते हैं। दे हैव सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट दैट द xylem fibers helps to water transportation and they support the food transportation. So these are dead and sclerenchymatous cell. ये भी dead cell से मिलकर के बने होते हैं। जो dead cell है उन्हें हमने क्या नाम दिया था, sclerenchyma. Phloem और bast fibers of some plant are source of commercial fiber. Source होते हैं commercial fiber के, जिन्हें हम क्या करते हैं, दूसरी चीजें बनाने में मदद होती है। जूट, आपने जूट देखा है, जूट के बैग्स, गनी बैग्स बनते हैं और क्लोथ्स बनते हैं, तो वो कैसे होते हैं, दे आर डेड, वो डेड होते हैं, हार्ड होते हैं बहुत। तो जूट, हेम्प एंड फ्लेक्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जो फ्लोएम फाइबर्स sieve ट्यूब और कंपेनियन सेल फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उन्हें ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जिससे कि अपने काम को वो इजीली कर लेते हैं। सो व्हाट आर देयर फंक्शन, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करते हैं फोटोसिंथेटिकली, जहाँ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इनटू द लीव्स। सो फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, वहां से ये फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं स्टोरेज ऑर्गन तक, और स्टोरेज ऑर्गन से फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्रोइंग रीजन तक। क्यों, क्योंकि ग्रोइंग रीजन को भी फूड की ज़रूरत होती है, जिसके बाद वो ग्रो करते हैं, और फूड की ज़रूरत सभी को होती है, रूट को भी होती है और फ्रूट प्लांट के टिप को भी होती है।
तो अभी आपको बताया था मैंने कि जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन फूड का होता है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, केवल ऊपर की ओर, बट फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, फूड का प्रिपरेशन लीफ में होता है, एंड फूड इज नीडेड टू द टिप ऑफ द प्लांट एंड टू द रूट ऑल्सो, और फूड की जरूरत दोनों ही डायरेक्शन में होती है ट्रांसपोर्टेशन की, ऊपर वाले टिप को भी जरूरत होती है फूड की और रूट को भी होती है। तो सबसे पहले जहाँ फूड प्रिपेयर्ड होता है, फ्लोएम फाइबर्स उस फूड को वहां से स्टोरेज ऑर्गन तक लाते हैं, फिर स्टोरेज ऑर्गन से वो ग्रोइंग रीजन्स तक ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। सी इट्स स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोएम, ये इसमें दिया हुआ सी प्लेट, सी ट्यूब मेंबर, कंपेनियन एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोएम पैरेन्काइमा। दीज आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, ये लिविंग होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, पतली सी लेयर से ढके हुए होते हैं। इट इज नोन एज बास्ट पैरेन्काइमा, इन्हें बास्ट पैरेन्काइमा भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड इन रेडियल डायरेक्शन, ये फूड को रेडियल डायरेक्शन में, इधर इधर हर डायरेक्शन में फूड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। एंड इट इज स्टोर्ड वेरियस मटेरियल, फॉर एग्जांपल रेजिन, लेटेक्स and mucilage. Resin and latex, you are well known that these are some sticky substances, और म्यूसिलेज भी होते हैं स्टिकी से सब्सटेंस, तो इन सब के को स्टोर करने में फ्लोएम पैरेन्काइमा हेल्प करते हैं। सो नाउ द कंपाउंड और द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कंप्लीटेड। वी हैव लर्न अबाउट द 4 टाइप ऑफ द जाइलम टिश्यू एंड 4 टाइप ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नाउ द सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।